आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि पहले आईआईटी में पूछे जा चुके हैं। Okay, so let us first take one example or one numerical which had come earlier. In this numerical, there is a plane surface and there is an arrangement of pulleys. Here is a pulley and there is a mass M1 suspended by this pulley, M1. Now there is another mass here. This mass is M2. There is a pulley here and this string goes this way and we have another mass here. This mass is M3. So M1 here, M2, M3 and this is the string. These are two frictionless pulleys. Okay. Now this is pulley 1, pulley 2. Now listen the question. Masses M1, M2, M3 are connected by a string of negligible mass which pass over massless and frictionless pulleys P1 and P2. The masses move such that portion of the string between P1 and P2 is parallel to the inclined plane and portion of the string between P2 and M3 is parallel to the horizontal plane. Okay. The masses M2 and M3 are 4.0 kg each. 4.0 kg. This is also 4.0 kg each. And coefficient of kinetic friction between masses and the surface is 0.25. Mu is 0.25. This will be applicable here, this will be applicable here. Wherever there is a friction, there is mu equal to 0.25. The inclined plane makes an angle of 37 degree with the horizontal. This is 37 degree. These are the given things. Now, what is the question about? Question में हमसे पूछा गया है, if the mass M1 moves downward with a uniform velocity, ये नीचे गिर रहा है M1. Uniform velocity का मतलब क्या होता है? Uniform velocity का मतलब होता है acceleration is equal to 0. Okay, it is coming down with uniform velocity. Now, what we have to find? There are two questions asked. Number 1, what is mass M1? Mass of M1. This is our first question. And the second question is, what is tension in the string at horizontal portion? Tension in horizontal portion. Okay, now we have to solve this. We have to find M1. This system of three masses, is it stationary or is it moving? The answer is, it is moving. Okay. There are two types of motion. One is uniform and one is accelerated. It is written that it is a uniform velocity. If it is a uniform velocity, the acceleration is 0. Now, if it is coming down, because of this force, these two are also sliding. So, we can make a very small equation. This m1 brings it down
it is applying a force here, this force. There is a tension in the string. This M1 is downward, and this force because of M1 is M1G. This M1G force pulls these two up. ये फोर्स इन दोनों को खींचता है, और खींचने से एक्सेलरेशन कितना होता है? 0. ओके, अगर एक्सेलरेशन 0 होता है मींस दिस टेंशन इज इक्वल टू m1g, सो नेट रिजल्टेंट इज 0. हियर द सेम टेंशन एक्ट्स टू पुल द टू. यही टेंशन यहां पर इनको ऐसे ऊपर खींच रहा है, और ये टेंशन किसके बराबर है? m1g के बराबर है। ये दोनों आपस में इक्वल हैं। हमको कैसे पता लगा? रिजल्टेंट फोर्स कितना है? रिजल्टेंट फोर्स 0 है। A is 0, so MA is equal to 0. इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, और ये फोर्स है m1g, तो T m1g के बराबर है, तो ये T इन दोनों को यहाँ पर खींचता है, तो इधर फोर्स कितना लग रहा है? m1g. अब चूंकि इनमें कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें नेट फोर्स नहीं है, तो जितना ये फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स ये बैकवर्ड रिटर्न में नीचे की तरफ लगाते हैं, तो इन दोनों फोर्सेस को हम इक्वल लिख सकते हैं, एंड दैट गिव्स द इक्वेशन. ओके, इससे हमको इक्वेशन मिलता है. तो इक्वेशन क्या मिलेगा? ये वाला फोर्स कितना है? तो आंसर है m1g. इधर के फोर्सेस कितने होंगे? बस यहीं पर आपका नॉलेज यूज होना है कि आप इसको करेक्टली कर पाते हैं कि नहीं कर पाते. जब ये सिस्टम ऐसा चल रहा है तो इधर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं? सोचिए, बताइए. एक M2 के वेट का कंपोनेंट इधर काम करेगा, ये इसका वेट नीचे काम करता है, और ये कितना होता है? M2G. और ये एंगल 37 है. अगर ये एंगल 37 है तो ये एंगल कितना होगा? सो दिस एंगल विल बी 53. So you can say that M2G cos 53 इस तरफ काम करेगा, या M2G sin 37 इस तरफ काम करेगा. It has the same value. So this is 53 degree, this is 37 degree. Okay. So M2G cos 53, ये कंपोनेंट इधर काम कर रहा है, इसके वेट का कंपोनेंट. अच्छा, उसके बाद जैसे ही ये दोनों ऊपर की तरफ स्लाइड करते हैं, यहां पर फ्रिक्शन लगता है. इस फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी? तो आंसर है इस फ्रिक्शन की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी. अब इस फ्रिक्शन की क्वांटिटी कितनी होगी? तो फ्रिक्शन की क्वांटिटी होती है म्यू इंटू एम. ये हमको मालूम है फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू इंटू एम. एम इज नॉर्मल रिएक्शन. यहां पर नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? ये नॉर्मल रिएक्शन. तो इसको हम लिखते हैं M2G cos 53 प्लस म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन N1. सॉरी, ये 2 है तो लेट अस टेक इट N2 प्लस, जब ये इधर स्लाइड करेगा तो इसका कोई भी वेट इसको वापस नहीं खींचता है. वेट तो वापस नहीं खींचता है, लेकिन फ्रिक्शन इसके अपोजिट जरूर काम करता है. ये फ्रिक्शन कितना होगा? अगेन म्यू इंटू आर. तो इसका नॉर्मल रिएक्शन हमने लिया N3, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू N3. ये हमारा इक्वेशन बन गया. इसके अलावा और कोई फोर्स हम नहीं सोच पा रहे हैं. इसका वेट का कंपोनेंट नीचे काम करेगा, इसका वेट का कंपोनेंट इसको अपोज नहीं करेगा, क्योंकि ये इस तरफ खींच रहा है और वेट नीचे लगता है. ऊपर उठाते तो वेट अपोज करता, इसलिए इसका वेट का कंपोनेंट नहीं लिया. लेकिन जब ये इधर जाएगा तो यहां पर फ्रिक्शन इधर काम करेगा.
ये जब ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन नीचे काम करेगा। इन दोनों फ्रिक्शन को इस टेंशन ने संभालना है, M1G ने संभालना है। ये दोनों फ्रिक्शन हमने यहां ले लिए और ये इसका वेट का कंपोनेंट ले लिया। ओके, अब इसकी वैल्यूज को हम लिखते हैं। दिस इज M2G म्यू। अच्छा, अब इसकी वैल्यूज हम लेते हैं। इसमें हमको वैल्यूज मालूम होनी चाहिए हर एक। ओके, हमको वैल्यू दी गई है। M2 की वैल्यू हमको मालूम है 4 kg, G की वैल्यू हमको मालूम है cos 53, इसकी वैल्यू हमको मालूम है म्यू की वैल्यू हमको दी गई है यहाँ पर, ये भी हमको मालूम है। N2 नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए इस Mg के हमने दो कंपोनेंट किए थे, वन इज दिस एंड वन इज दिस। अगर ये एंगल 37 है तो ये एंगल 53 होता है और ये एंगल 37 होता है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? तो आंसर है दिस कंपोनेंट विल बी M2G इनटू cos 37। ये M2G है और ये 37 है, तो M2G cos 37 is the normal reaction. So this we will write as M2G cos 37. Okay, multiplied by mu plus mu into N3 किसके बराबर है? ये इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा, दिस इज 4 kg, और इसका नॉर्मल रिएक्शन, दिस नॉर्मल रिएक्शन विल बी हाउ मच? 4 kg, 4 multiplied by G plus this is M2G and this is cos 53. cos 53 means sin 37, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। Now let us place values. एक चीज आप देख रहे हैं, G सब में कॉमन है, G here, here, here. This is cancelled. M2 is 4 kg, so this we can write as 4. Mu has a value of 0.25, तो अगली बार हम इसकी mu की वैल्यू लिख लेंगे 0.25. So we put the values again. M2 is 4, cos 53 is 3/5, mu is 0.25, 4/5 plus 0.25 into 4. और इस पूरे को अब हम सॉल्व करते हैं। इस पूरे को सॉल्व करने से हमको वैल्यू मिली 4.2. ओके, दिस इज 12/5 plus this is 1, 4/5 plus this is 1, 4, 16/5 plus 1, this is 3.2 and 1, 4.2 kg. So 4.2 kg is our answer, that is value of M1. Okay, अब इसका पोर्शन B देखिए। B पोर्शन, टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल पोर्शन, ये वाला टेंशन हमें चाहिए। अब ये पूरी एक स्ट्रिंग है, टेंशन पूरा एक ही होता है। अगर हम यहाँ पर टेंशन निकालना चाहते हैं, अगर यहाँ टेंशन निकालना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक एक ही जैसा टेंशन है। इस टेंशन को अगर हम निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। टेंशन इज इक्वल टू फ्रिक्शन। मास का, वेट का कोई भी कंपोनेंट इधर काम नहीं करता है और इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0. इफ द एक्सेलरेशन इज 0 देन वी कैन राइट इट दिस वे, T minus friction is equal to mass into acceleration, which is equal to 0. So tension is equal to friction. This is equal to mu into M3, mu into M3 into G, mu into 4G, mu into 4 into G, 9.8. So this is tension. So tension is equal to 0.25 into 4 into 9.8, and this is equal to 9.8 Newton. So this is tension in this part of this string. So this solves the two problems. Now we see another question. This was also asked in IIT, and it's a very small question but very tricky.
A block of mass m rests on a horizontal floor with which it has a coefficient of static friction mu. Here is a block and the static friction here has coefficient mu. Coefficient of static friction is mu. The mass of this block is m. Okay. It is desired to make the body move by applying minimum possible force F. इस पर हम F फोर्स लगाना चाहते हैं, F, और हम चाहते हैं कि ये बॉडी चले। अगर इस बॉडी को चलाना है तो हमको मालूम है इस बॉडी को चलाने के लिए अगर एक्सेलरेशन 0 भी देना है तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट है जो इसको खींचकर सामने की तरफ ले जाएगा। ओके, हमको ये फोर्स F लगाना है, इसका कंपोनेंट इसको खींच के सामने ले जाता है। अब हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। फिर से सुनिए, इट इज डिजायर्ड टू मेक द बॉडी मूव बाय अप्लाइंग मिनिमम पॉसिबल फोर्स F। ये फोर्स मिनिमम है और हमसे पूछा जा रहा है कि इस फोर्स की वैल्यू बताइए। फोर्स हम किस तरीके से लगाएं कि हमको कम से कम फोर्स लगाना पड़े। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ F एंड डायरेक्शन इन विच इट हैज टू बी अप्लाइड। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ F, फाइंड डायरेक्शन। तो फिर गिवन क्या है? गिवन है द फोर्स शुड बी मिनिमम, द फोर्स शुड बी मिनिमम। ये हमारी कंडीशन है। हमको बताना है कि फोर्स कितना होगा और किस डायरेक्शन में हमको लगाना चाहिए। तो इसमें हम लोग एक चीज सोच सकते हैं कि अगर हमको इसको इधर खींचना है, अगर इधर खींचना है तो इधर ही फोर्स लगा देते हैं, सबसे कम लगेगा। बट दैट इज नॉट ट्रू। क्यों? जब हम इधर फोर्स लगाते हैं तो ये नीचे की तरफ एक फोर्स लगाता है mg, और इसके कारण अर्थ इस पर फोर्स लगाती है और इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन होता है। दिस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg, और इसके कारण यहां पर एक फ्रिक्शन आएगा और ये फ्रिक्शन कितना होता है? दिस फ्रिक्शन इज म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। और अभी नॉर्मल रिएक्शन कितना है? mg। अगर हम इधर फोर्स लगाएं, अगर हम ऐसे फोर्स लगाते हैं तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर काम करता है। अगर ये एंगल थीटा है तो हमको मालूम है कि इधर जो काम करेगा दैट विल बी F cos थीटा, और इधर जो काम करेगा दैट विल बी F sin थीटा। अब ये F sin थीटा ऊपर काम करेगा, mg नीचे काम करेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? हम लोगों ने पढ़ा है कि ये नॉर्मल रिएक्शन प्लस F sin थीटा, नॉर्मल रिएक्शन प्लस F sin थीटा दोनों मिला के किसके बराबर होंगे? mg के बराबर। नॉर्मल रिएक्शन प्लस mg sin थीटा, सॉरी, नॉर्मल रिएक्शन प्लस F sin थीटा, F sin थीटा ये दोनों मिलाकर किसके बराबर होंगे? mg। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? mg माइनस F sin थीटा। ये है नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये नॉर्मल रिएक्शन है तो ये फ्रिक्शन का फोर्स कितना होगा? तो आंसर है म्यू इनटू एन। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू एन, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू इनटू mg माइनस F sin थीटा। ये फ्रिक्शन, और इसी फ्रिक्शन ने डिसाइड करना है कि F cos थीटा कितना होना चाहिए। अब अगर हमको F मिनिमम रखना है तो हम चाहते हैं फ्रिक्शन मिनिमम हो। फ्रिक्शन मिनिमम कैसे होगा? ये माइनस वाला पोर्शन अगर बड़ा हो गया, अगर माइनस वाला पोर्शन बड़ा है तो ये क्वांटिटी छोटी हो गई, तो ये क्वांटिटी छोटी हो गई।
अगर माइनस वाला पोर्शन हमको बड़ा करना है तो क्या चीज बड़ी होनी चाहिए? थीटा। ओके, जैसे जैसे थीटा बड़ा होते जाता है ये वाला पोर्शन बड़ा होता जाएगा, ये पोर्शन बड़ा होता जाएगा तो माइनस बड़ा हो जाएगा, फ्रिक्शन छोटा हो जाएगा, फ्रिक्शन छोटा हो जाएगा, हमको कम फोर्स लगाना चाहिए, कम लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब थीटा कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। अगर थीटा बड़ा होना चाहिए मतलब फोर्स किधर होना चाहिए? ऊपर, यानी ऊपर फोर्स लगाने से फ्रिक्शन कम होता है, इसलिए हमको ये वाला फोर्स कम लगाना पड़ता है। ये तो उल्टा हो गया। अभी तक हम क्या सोच रहे थे कि इस फोर्स को हम इधर लगाएंगे क्योंकि फ्रिक्शन इधर होता है, तो ये जो वेस्ट हो रहा है हमारा फोर्स, इसकी बजाय हम यहां लगाएंगे, फोर्स कम लगेगा। तो F cos थीटा ने इसको अल्टीमेटली खींचना, F cos थीटा ने खींचना है। अगर F cos थीटा हमको छोटा चाहिए तो F को छोटा होना चाहिए, लेकिन थीटा F cos थीटा इधर आएगा, F cos थीटा ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, तो थीटा छोटे से छोटा होना चाहिए क्योंकि cos 0 क्या होता है? 1 मैक्सिमम। तो जितना थीटा छोटा होगा उतना F cos थीटा बड़ा होगा, इसलिए हमको फोर्स इधर लगाना चाहिए। पर ये चीज क्या बताती है कि थीटा हमको बड़े से बड़ा रखना चाहिए ताकि फ्रिक्शन को ही हम काट के छोटा कर दें। ये दोनों थ्योरी आ रही है, समझ में आ रहा है? तो दोनों चीज हमको आई। हम चाहते हैं चूंकि इसको इधर मूव करना है इसलिए फोर्स ही यहां लगाओ तो कम लगेगा। अदरवाइज अगर इसको खींचने के लिए हमको 10 न्यूटन फोर्स चाहिए और हम इधर फोर्स लगा रहे हैं तो हमको लगाना पड़ता है 15 न्यूटन। 15 न्यूटन हम यहां लगाते हैं, उसका एक कंपोनेंट 10 न्यूटन इसको इधर खींचता है क्योंकि हमारे रिक्वायरमेंट 10 की है। और अगर हम इधर ही लगाएंगे तो हमको 10 लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। तो हम क्या सोचते हैं, क्यों नहीं हम इधर लगाते? लेकिन दूसरी थ्योरी क्या कहती है कि जितना आप थीटा को बढ़ाते हैं उतनी ये चीज हल्की होते जाती है, mg में से उतना ये कम होते जाता है, उतना फ्रिक्शन कम हो जाएगा। और अगर फ्रिक्शन कम होगा तो हमको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। तो एक थ्योरी कहती है इधर रहिए, दूसरी थ्योरी कहती है ऊपर जाइए। और इसीलिए ये क्वेश्चन बना कि हम इसको बीच में कहीं पर कितने एंगल पर सेट करें कि F कम से कम लगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब अगर हम F को कम से कम रखना चाहते हैं, उसकी कंडीशन बनाना चाहते हैं, तो तरीका क्या है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें हमको पूछा जाता है कि एक वेरिएबल क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू निकालिए। किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू निकालने का फंडा याद रखिए। उसका तरीका है कि उस क्वांटिटी का आप इक्वेशन बनाइए वेरिएबल के टर्म में, और फिर देखिए कि उसके जो सामने टर्म आई है इज इक्वल टू F इज इक्वल टू सो मच, उस टर्म को हम छोटे से छोटा कैसे कर सकते हैं, वही चीज हम यहां करेंगे। पहले हम ये तो निकाल लें कि F इज इक्वल टू कितना होगा, फिर देखेंगे कि F को मिनिमम कैसे किया जा सकता है। तो उसको निकालने के लिए यहां पर हमने किया F cos थीटा दैट इज फ्रिक्शन। F के हमने दो कंपोनेंट बनाए, एक F sin थीटा और एक F cos थीटा। ओके, यहां पर हमने देखा F sin थीटा इज इक्वल टू F sin थीटा, this is equal to n minus mg. This is mg minus n. उल्टा F cos theta, this is equal to mu into n. अच्छा, ये जो हमने mu into n किया, F cos theta, F cos थीटा इधर खींचेगा, इसके अपोजिट में कौन आएगा? म्यू इंटू एन। और n किसके बराबर है? अभी हमने किया n किसके बराबर है? mg माइनस F sin थीटा, mg माइनस F sin थीटा, दिस इज म्यू mg माइनस म्यू F sin theta, this is equal to F cos theta. ओके, F वाली टर्म से एक तरफ कर दीजिए,
F. So this is cos theta plus mu sin theta is equal to mu mg. तो F is equal to mu mg to be divided by cos theta plus mu sin theta. F is equal to mu mg upon cos theta plus mu sin theta. ये F का एक्सप्रेशन आ गया। अब इस F के एक्सप्रेशन को हमारा क्वेश्चन है F छोटे से छोटा कब होगा, उसकी शर्त बताइए। तो म्यू इज ए कांस्टेंट, m इज ए कांस्टेंट, g इज ए कांस्टेंट। इस न्यूमरेटर को हम छोटे से छोटा नहीं कर सकते, दिस इज ए कांस्टेंट। अब नीचे आ जाइए, नीचे में थीटा वेरिएबल है, इसको हम छोटे से छोटा करना चाहते हैं। तो इस f को अगर हमने मिनिमम करना है, मिनिमम इसको नहीं करना, मिनिमम f को करना है। अगर f को छोटे से छोटा करना है तो इसका डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, बड़े से बड़ा। छोटे से छोटा f 0 होगा, कब होगा, जब ये इंफिनिटी हो। तो इसको बड़े से बड़ा होना चाहिए। तो अब हमको कंडीशन मिल गई है कि cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा शुड बी मैक्सिमम। अब मैक्सिमम मिनिमम इसकी कंडीशन निकालना हमको आता है, तो हमने लिखा फॉर f टू बी मिनिमम cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा शुड बी मैक्सिमम। और अगर इसको हमें मैक्सिमम चाहिए तो इसका डिफरेंशिएशन d बाई डी थीटा कैसा होना चाहिए, 0। मैक्सिमा की कंडीशन क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ द एक्सप्रेशन शुड बी 0। ये आ गया, ओके। अब इसको ये हमको कंडीशन मिल गई। अच्छा, d बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, डिफरेंशिएट करिए। d बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा इज माइनस sin थीटा and this will be plus mu cos theta. This is equal to 0. So mu this is mu cos theta is equal to mu cos theta is equal to sin theta. Cos theta को इधर ले जाइए, this gives tan theta is equal to mu. Tan theta is equal to mu. So this is our condition. कैसे? थीटा को हम इतना रखेंगे कि tan थीटा किसके बराबर हो जाए, म्यू के बराबर हो जाए। तो अगर हमने थीटा को इतना रखा कि tan थीटा म्यू के बराबर हो जाए तो ये कंडीशन आ जाएगी, ये कंडीशन आ जाएगी और ये कंडीशन आ जाएगी। F will be minimum. So ये हमारी कंडीशन बनी that force will be minimum when theta is tan inverse mu, when tan theta is equal to। अच्छा, अभी तक हमने कंडीशन निकाली। हमारा क्वेश्चन क्या था, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ f। अगर हमको f का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमारे पास f का फॉर्मूला है। इस f के फॉर्मूले में tan थीटा इज इक्वल टू म्यू हम रख सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू म्यू अगर रखेंगे तो यहां पर हम f की वैल्यू निकालेंगे और f की वैल्यू म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा रख दीजिए, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा रख दीजिए और देखिए f की क्या वैल्यू आती है। इस तरह से जो f की वैल्यू निकलेगी दैट विल बी, एंड g तो वैसा ही रहेगा। ये हमने लिखा पुट इन इक्वेशन फॉर f, और ये रखने से आ गया f इज इक्वल टू mg, और म्यू को हमने रखा sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। सारे कैंसिलेशन कर लिए, कैंसिलेशन करने के बाद ये हमको मिलता है mg sin थीटा, mg sin थीटा। ये f की वैल्यू आ गई। ये हमने कहां से लाई, यहां पर रखा tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। तो ये आ गया मिनिमम फोर्स। तो मिनिमम फोर्स हमें कितना चाहिए, मिनिमम फोर्स हमें चाहिए mg sin थीटा। उस तरह से हमको ये थीटा को
एडजस्ट करना पड़ेगा। और थीटा किसके बराबर है? tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। फिर से देखिए एंगल थीटा कुछ होना चाहिए, कितना होना चाहिए? डिपेंड्स अपॉन फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन म्यू है तो tan थीटा शुड बी इक्वल टू म्यू। ये एक चीज हो गई। दूसरा, उस समय हमारा फोर्स कितना होगा? तो हमारा आंसर है उस समय हमारा फोर्स F इज इक्वल टू mg sin थीटा होगा। इतना फोर्स हमको लगाना पड़ेगा। तीसरी चीज है उसकी डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन हमने पहले ही बता दी, ये वाली है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का आंसर क्या हुआ? डायरेक्शन शुड बी सच दैट थीटा इज tan इनवर्स म्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आ गया mg sin थीटा। सो दीज आर द टू आंसर्स वी गॉट। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आईआईटी का। 2 blocks 2.9 kg and 1.9 kg are suspended from a rigid support S by 2 inextensible wires, each of length 1 meter. The upper wire has negligible mass m0. Okay, the lower wire has a uniform mass 0.2 kg per meter. Mass 0.2 kg per meter. ओके, और ये लेंथ कितनी है? 1 मीटर। तो इस पूरे का मास कितना हुआ? 0.2 kg। ओके, द होल सिस्टम ऑफ ब्लॉक, वायर एंड सपोर्ट हैव अपवर्ड एक्सेलरेशन। Upward acceleration A, and this A is equal to 0.2 meter per second square. इससे ये पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, ऊपर खींचा जा रहा है। एक्सेलरेशन इज व्हाट? एक्सेलरेशन इज ड्यू टू फोर्स। दैट मींस इस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के कारण इस पूरे में एक्सेलरेशन हो रहा है। ओके, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G has a value 9.8. Okay. अब क्वेश्चन सुनिए। This is the given condition. The question is find tension at the midpoint of the lower point. Tension at midpoint of the lower point. Tension at midpoint of lower string. और दूसरा क्वेश्चन है हमारा फाइंड टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द अगेन अपर स्ट्रिंग। टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ अपर स्ट्रिंग, यानी यहां पर। तो हमें यहां पर टेंशन निकालना है T1 और यहां पर टेंशन निकालना है T2। दीज आर बेसिक क्वेश्चंस। सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हम लोग क्लास 11 में काफी कुछ करते हैं। जब कोई चीज एक्सेलरेशन से ऊपर जाती है तो इसका एग्जांपल आपने किस में पढ़ा है? आंसर है इसका एग्जांपल हमने लिफ्ट में पढ़ा है। इसका एग्जांपल दूसरे पुलिस वगैरह में भी पढ़ा है। तो यहां आते हैं, यहां पर हम इसका टेंशन है T1, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं यहां से। क्यों? इस पॉइंट पर हमको टेंशन निकालना है। यहां पर ऊपर की तरफ टेंशन काम कर रहा है T1, नीचे की तरफ कौन काम कर रहे हैं? तो नीचे की तरफ ये एक मास है। और जो ध्यान देने वाली बात है कि ये जो स्ट्रिंग है, दिस स्ट्रिंग इज नॉट मासलेस। अगर ये स्ट्रिंग मासलेस नहीं है तो इसका मास भी गिना जाएगा। चूंकि हम टेंशन मिड पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, मिड पॉइंट से इसको ऊपर उठा रहे हैं, तो ये वाला टेंशन इस रस्सी को उठाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये सिर्फ अपने नीचे वाले वेट को उठाएगा। तो इतने ही वेट को उठाएगा रस्सी का और इस वेट को उठाएगा। तो ये 1 मीटर का मास कितना होता है? 0.2 kg, पूरे 1 मीटर का। और यहां से हम कितने को उठा रहे हैं? हाफ मीटर। तो हाफ मीटर का मास कितना हुआ? 0.1 kg। अगर इसका 0.1 kg है और इसका 1.9 kg है तो ये वाले सिस्टम का मास टोटल कितना हो गया? 1.9
प्लस 0.1 दैट इज इक्वल टू 2 kg। तो अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहां बनाता हूं। ये नीचे की तरफ ये जो है ये वाला सिस्टम है 2 kg। किधर फोर्स लगा रहा है? नीचे की तरफ। कितना फोर्स लगा रहा है? m, जिसमें m की वैल्यू कितनी लेनी है? 2। ओके। ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? T1। दोनों में बराबर है कि छोटे बड़े हैं? तो आंसर है छोटे बड़े। इसका प्रूफ ये है कि ये अल्टीमेटली ऊपर जा रहा है एक एक्सेलरेशन से, और वो एक्सेलरेशन हमको कितना दिया गया? 0.2। सो एक्सेलरेशन इज 0.2। तो ऊपर की तरफ का फोर्स कितना हुआ? तो आंसर है ऊपर की तरफ का रिजल्टेंट फोर्स हो गया ma। दिस इज इक्वल टू मास इसका लेना है 2 kg और एक्सेलरेशन लेना है 0.2। तो हमारा इक्वेशन क्या बना यहाँ पे? यहाँ हमारा इक्वेशन बना ऊपर की तरफ लगने वाला T1 माइनस नीचे की तरफ लगने वाला mg इज रिजल्टेंट जो ऊपर की तरफ लगता है कितना? ma, क्योंकि सिस्टम ऊपर जा रहा है। इन सब की वैल्यूज हमने रखी। T1 की वैल्यू निकालनी है। mg जो नीचे काम कर रहा है दैट इज 2 multiplied by 9.8. This is equal to mass. किसका मास? जो बॉडी ऊपर उठाई जा रही है, और ये दोनों मिलाकर ऊपर उठाए जा रहे हैं। ये दोनों का मास कितना है? 2 kg। 2 into एक्सेलरेशन कितना लिया हमने? 0.2। ओके। तो ये पहले का फ्री बॉडी डायग्राम बना। इससे हमने T1 की वैल्यू निकाली। 2 into 0.2 is 0.4 और ये इधर चला गया प्लस दिस इज 18, 19, 19.6। So this is equal to 20 Newton. T1 is equal to 20 Newton. तो ये फ्री बॉडी डायग्राम से बना। ये टेंशन 1 की वैल्यू आ गई। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब इसी बेसिस पर हम इसको T2 को भी निकाल सकते हैं। तो देखिए T2 बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही निकालिए। T2 माइनस नीचे की तरफ कितना मास है? तो नीचे की तरफ यहां से शुरू करिए। दिस इज मासलेस, दिस इज 2.9। अब ये भी हमने गिना 2.9, 1.9 और ये वाला 1 मीटर। 1 मीटर का मास कितना होता है? 0.2। तो इन सब को हमने ऐड कर दिया तो 3 into 5। तो ये कितना हो गया? 5 kg। दिस प्लस दिस प्लस दिस। सो दिस इज इक्वल टू T2 माइनस mg इज इक्वल टू ma। अब इसकी वैल्यूज T2 माइनस ये m कितना लेना है? 5। 9.8 इज इक्वल टू 5 इंटू 0.2, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना है? 0.2। सो दिस इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज, ये इधर आ जाएगा प्लस 49। ये आ गया टेंशन 50 न्यूटन। तो यहां पर टेंशन 50। सो इट्स ए वेरी इजी क्वेश्चन। आईआईटी को मैच तो नहीं करता, बट दिस वाज आस्क्ड इन दैट, सो वी हैव सॉल्व्ड इट। इट इज इन दिस वे। तो यहां आपको याद क्या रखना है? यहां गड़बड़ कहां पर हो सकती है? ये पूरे स्ट्रिंग का मास आपको नहीं लेना है T1 में, सिर्फ यहां से लेना है। क्यों? क्योंकि टेंशन इस पॉइंट पर पूछा गया। और ये वाली जो स्ट्रिंग है, अभी तक हमने जितने एग्जांपल किए थे सब में एक चीज रटी रटाई आती है। द स्ट्रिंग इज टोटली फ्लेक्सिबल, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। ये 3 प्रॉपर्टीज हम स्ट्रिंग की पढ़ते हैं और उसको पढ़ लेते, याद कर लेते, बोल लेते, लिख लेते। इन्होंने उसमें से एक प्रॉपर्टी चेंज कर दी। इट इज नॉट मासलेस, इट हैज ए मास। तो हम चक्कर में पड़ जाते हैं कि अगर इसके पास मास आ गया तो हमको क्या करना? तो ये समझ में आता है मास है तो मास में जोड़ देते हैं। तो हम इस 0.2 kg को जोड़ देते हैं। दैट विल बी अनदर मिस्टेक। तो एक तो इसको मासलेस नहीं लेना है, इसका मास लेना है, लेकिन पूरे का मास नहीं लेना है, आधे का मास लेना है। क्यों आधे का लेना है? क्योंकि हमको टेंशन इस पॉइंट पर पूछा जा रहा है। इसलिए जब ये स्ट्रिंग इसको ऊपर खींचेगी तो नीचे वाली चीजों का वेट लेगी, ऊपर वाली चीजों का वेट नहीं लेगी। इसलिए यहां पर हमको सिर्फ हाफ स्ट्रिंग का वेट लेना है। दीज आर द 2 कैचेस
where there are chances of mistake, इसलिए इसको IIT में पूछा गया। ओके, सो अगला क्वेश्चन सुनिए। There is a hemispherical bowl, एक कटोरा है हेमिस्फेरिकल शेप का। ओके, इसका रेडियस 0.1 मीटर है। दिस रेडियस इज 0.1 मीटर। दिस इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ये इसकी एक्सिस है और ये ऐसे घूम रहा है इस तरह से। अगर ये ऐसा घूमता है, कटोरा ऐसा घूमता है, तो हमको मालूम है कि इसके हर पॉइंट पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा। किधर? बाहर की तरफ। एक्सिस से बाहर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स हर जगह काम करेगा। ओके, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। A particle of mass 10 to the power -2 kg on the frictionless inner surface of the ball is also rotating. यहां पर कहीं पर एक बॉडी है, हमने यहां डाली और वो रोटेट कर रही है। इसका मास कितना है? मास ऑफ द बॉडी m is equal to 10 to the power -2 kg. Okay. On the frictionless inner surface of the ball is also rotating with the same frequency omega. Okay, the particle is at a height h from the bottom. यहां से इसकी हाइट है h, ये यहां से यहां तक, या हम ये कह सकते हैं कि यहां से यहां तक की हाइट है h। ओके, ये अगर रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, तो यहां तक हाइट होती है r, तो ये वाली हाइट कितनी होगी? ये वाली पूरी r, ये वाली h और ये वाली r माइनस h। अब अगर ये बॉल घूम रहा है तो ये भी घूम रहा है, इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ काम कर रहा होगा। पर पहले क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन h एंड ओमेगा। Relation between h and omega। ये रहा h, ये रहा ओमेगा। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। जितना फास्ट उसको घुमाएंगे उतना ये ऊपर चढ़ता जाएगा और h बढ़ता जाएगा। यही इन्होंने बोला है कि वो एक्सप्रेशन बताइए जिसमें h और ओमेगा दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। What is the minimum value of omega needed in order to have a non-zero value of h? Okay. What is the minimum value of omega needed? Minimum omega needed in order to have non-zero value h. Non-zero value of h मतलब कि यहां पर जब ये पार्टिकल है तो h की वैल्यू 0 है। जैसे ही यहां से उठता है तो h की वैल्यू बढ़ती है एंड दैट बिकम ए नॉन जीरो वैल्यू। तो इनका ये मतलब है कि h यहां से उठे उसके लिए इसकी कम से कम स्पीड कितनी होनी चाहिए। एक कटोरे में हमने रखा, नीचे में है और कटोरे को ऐसा रोटेट किया, देखा ये बॉडी तो ऊपर नहीं उठी। क्यों नहीं ऊपर उठी? क्योंकि एक मिनिमम वैल्यू हमको ओमेगा की चाहिए। जब उतना फास्ट हो जाएगा तब वो उठना शुरू करेगा। दैट इज मिनिमम वैल्यू और वही हमसे निकालने को बोला जा रहा है। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा सो दैट इट विल स्टार्ट राइजिंग। सो मिनिमम ओमेगा नीडेड फॉर h टू बी नॉन जीरो। दूसरे शब्दों में ये पार्टिकल कब उठना शुरू होगा, ये चीज हमको इसमें से निकालना है। रिलेशन बिटवीन h एंड ओमेगा। ओके, इस चीज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हमको मालूम है जब भी कोई चीज घूमेगी हमारे दिमाग में चीज स्ट्राइक करती है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहां पर इसके घूमने का रेडियस ये वाला रेडियस नहीं है, इसका ये रेडियस है क्योंकि ये एक्सिस है और ये इसके ऐसे चारों तरफ घूमता है। लेट दिस रेडियस बी r। अगर ये रेडियस r है
तो ये वाला रेडियस कितना है, दिस इज r। ओके, अब हमको इसके रिलेशन निकालने हैं। इस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर की तरफ लगता है, ये वाला फोर्स, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की कैलकुलेशन कितनी होती है, आंसर है mr ओमेगा स्क्वायर। ये mr ओमेगा स्क्वायर इस तरफ फोर्स लग रहा है। ओके, ये जो सरफेस है, ये सरफेस इस पार्टिकल को रिएक्ट करती है रेडियस की तरफ। द सरफेस रिएक्ट टुवर्ड्स रेडियस। अगर ये रेडियस की तरफ रिएक्ट करती है, देन दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये नॉर्मल रिएक्शन है, क्यों? क्योंकि ये सरफेस को दबाता है, सरफेस इसको दबाती है, इसलिए ये बाहर की तरफ नहीं जा पाता। अब अगर ये सरफेस इसको दबा रही है, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, तो इस नॉर्मल रिएक्शन के हम दो कंपोनेंट कर लेते हैं, वन इज दिस एंड वन इज दिस। ओके, इसका वेट mg नीचे काम करता है, और ये बड़ी फेमस सिचुएशन आ गई जिसको आप सब पहचानते हैं, हमको एक एंगल क्रिएट करना है। लेट अस से दिस इज द एंगल थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हुआ, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, दिस इज एंड, r की डायरेक्शन में n काम करता है। अगर ये एंगल थीटा हुआ तो ये कितना हुआ, n cos थीटा, और ये कितना हुआ, n sin थीटा। ये दो कंपोनेंट इस नॉर्मल रिएक्शन के हमने देखे। फिर से देखिए, ये पार्टिकल यहां रखा है, इस पार्टिकल पर mr ओमेगा स्क्वायर इसको इस तरफ फेंकता है, mg इसको नीचे खींचता है, ना ये इधर जाता है ना ये इधर जाता है। क्यों? क्योंकि इसको इस पॉट ने संभाल के रखा हुआ है, और ये इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन पैदा करता है। ये नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों को बैलेंस कर लेता है। कैसे बैलेंस कर लेता है, n cos थीटा से इसको बैलेंस करता है, n sin थीटा से इसको बैलेंस करता है। ये नॉर्मल रिएक्शन है, और यही दोनों इक्वेशन हमने यहां पर लिख दिए। n sin थीटा इज इक्वल टू mg, नो, n sin थीटा इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, एंड n cos थीटा इज इक्वल टू n cos थीटा इज इक्वल टू mg। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि हमको रिलेशन तो निकालना है h और ओमेगा का, h कहां? तो आंसर है h यही है। कहां छिपा हुआ है, थीटा में। क्योंकि थीटा का यदि आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे तो ये चीज उसमें आएगी, ये, और ये कितना है, r माइनस एच, r माइनस एच। साइन थीटा करेंगे r माइनस एच अपॉन r, कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा में r माइनस एच अपॉन r ये आ जाएगा। टेन थीटा करेंगे तो r अपॉन r माइनस एच ऐसा आ जाएगा। ऐसा कर करके h तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, उसको हम कर लेंगे इन्वॉल्व। एनीवे, यहां पर आइए, ये हमने किया n sin थीटा एंड cos थीटा, इसके बाद इन दोनों को डिवाइड कर दिया, n कैंसिल हो गया, दिस बिकम्स tan थीटा इज इक्वल टू m इज कैंसल्ड r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g। ओके, अब tan थीटा, ये अगर थीटा है तो इसकी टेंजेंट की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाउ मच इज परपेंडिकुलर, r, base is r minus h, so this is r upon r minus h is equal to r omega square upon g। r is cancelled, g को इधर ले आइए, omega is equal to g upon r minus h, और ये स्क्वायर है तो ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट। सो ओमेगा इज इक्वल टू g upon r minus h का स्क्वायर रूट। This is relation between omega and h। थोड़ा सा प्रोपोर्शनैलिटी देखिए, अगर हम ओमेगा को बढ़ाते हैं, अगर ओमेगा को बढ़ाते हैं, g इज ए कांस्टेंट, तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। ये वैल्यू कम कब होती है, जब h की वैल्यू बढ़ती है। तो h की वैल्यू बढ़ेगी तो ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी, अगर ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी, डिनोमिनेटर कम होगा, तो ये फुल क्वांटिटी इंक्रीज होगी, ओमेगा इंक्रीज होगा। रिलेशन एस्टैब्लिश्ड है और ठीक है। तो जैसे जैसे ओमेगा बढ़ता है, h बढ़ता है। दिस इज द वैल्यू बिटवीन ओमेगा एंड
रिलेशन बिटवीन h एंड ओमेगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया। नाउ मिनिमम ओमेगा नीडेड फॉर h टू बी नॉन जीरो। इसके लिए देखिए, अगर ओमेगा की हम वैल्यू रखेंगे जिसमें h को नॉन जीरो होना, अब चूंकि h को नॉन जीरो होना चाहिए तो हम इसमें से h की वैल्यू निकालते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g अपॉन r माइनस h। r माइनस h को इधर ले आइए तो r माइनस h इज इक्वल टू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो h को इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो h की वैल्यू क्या हुई, h इज इक्वल टू r माइनस g अपॉन ओमेगा स्क्वायर, r माइनस g अपॉन ओमेगा, ये h की वैल्यू है। अब इनका ये कहना है कि h को नॉन जीरो होना चाहिए। अगर h को नॉन जीरो होना चाहिए तो r माइनस g अपॉन ओमेगा स्क्वायर को नॉन जीरो होना चाहिए। ये नॉन जीरो कब होगा, तो हमारी मैथमेटिक्स कहती है ये नॉन जीरो तब होगा जब r की वैल्यू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर से ज्यादा। सो फॉर non-zero h, r should be slightly more than g upon omega square। जब तक ये इससे बड़ा रहेगा तब तक ये नॉन जीरो होगा, जैसे ही ये इसके बराबर हो जाता है ये जीरो हो जाएगा। ओके, सो r should be larger than g upon omega square। इन दोनों को ट्रांसफर कर दीजिए। सो ओमेगा should be larger than g upon r। ओमेगा स्क्वायर आया, फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकाला तो ओमेगा इज लार्जर देन रूट g अपॉन r। दिस इज द मिनिमम वैल्यू सो दैट h इज नॉन जीरो, यानी h बनना शुरू होता है। इतनी जब ओमेगा की वैल्यू आएगी उसके बाद ये पार्टिकल ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज द अवर सेकंड मिनिमम ओमेगा नीडेड फॉर h टू बी नॉन जीरो। थैंक यू। These are some old and quite easy type of numericals which have been asked in IIT. There are certain more tricky questions that we will be doing in the next class. So come and attend the next class. Those questions will be bit more difficult, bit more tricky, and you will enjoy it, I am sure.